Hello, friends. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. Today, I'll be taking your 5 minutes time because we'll be discussing tips for answering MCQs based paper in exams. Yes, you heard it right. I'm here to guide you and give you some tips because CS Executive New Syllabus students will be handling the MCQs paper first time in this December 2019 exams. I hope your preparations must be going well. हमारे MCQs based paper 3 papers हो गए हैं, especially for new syllabus. Old syllabus students are aware that how to manage the MCQs, and these kind of tips I will be sharing the tips in next 5 to 10 minutes. First thing, what is important is that you have to prepare well. If your concepts are clear, your preparation is going good, then you don't have to worry, because especially for the CS Executive New Syllabus, second group subjects like corporate and management accounting and financial management, strategic management, this will be the first attempt in which institute will be testing you. So if you are prepared well, your concepts are well, then you can definitely attempt your exam well. First number tip is read the question very carefully. Normal, if you know this, but sometimes we are human beings और हमारे पीछ क्वेश्चन हम ठीक से नहीं रीड करते हैं. We don't read the question carefully and we don't evaluate the things which is being asked in the question. Question confuse करता है, हमें नहीं पता लगता, because question हमारे theoretical भी होंगे, practical भी होंगे. आप भूल जाइए कि corporate accounting, management accounting में और financial management में आपको सारे theory मिलेंगे. You will be tested practically. अब वो practically कैसे होंगे, that ICSI will let you know. ICSI ने हमारा एक टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर या एक सैम्पल 100 क्वेश्चंस रिलीज किए हैं जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. आई ट्राई टू मेक अ वीडियो बाय सॉल्विंग ऑल दोज MCQs. और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लाइक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसके लिए मैं आपके MCQs की वीडियो लाऊं, तो प्लीज डू कमेंट इन बिलो द वीडियो. तो read the question very carefully. Second is time allocation. Why time allocation I'm talking about? Because we have a limited 180 minutes, ladies and gentlemen. 180 minutes आपके पास हैं, 100 questions आपको solve करने हैं, तो less than 2 minutes you have to devote in every question. क्या हम ये ध्यान रखते हैं? If you are practicing MCQs at your home or wherever you are, तो अगर आप MCQs 2 मिनट से कम में सॉल्व कर पा रहे हैं, then you are going on the right way. अगर आप प्रैक्टिकल MCQs में कहीं पे फंस रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको टाइम एलोकेशन का बहुत ध्यान रखना है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव, you have to give less than two minutes for every question. Answer the easy question first. This is a very important thing because questions आपके कुछ difficult भी दिखेंगे, questions आपको कुछ easy भी दिखेंगे, questions आपको कुछ एवरेज भी दिखेंगे. तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस रीड करते जाना है. रीड करके जो भी आपको क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम में क्लिक कर जाए, आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि यस दिस इज द आंसर, यू हैव टू आंसर दोज फर्स्ट. और अगर जिसका नहीं आंसर दिमाग में आ रहा है, नहीं आप इवेलुएट कर रहे हैं, उसको रीड करके आगे बढ़ जाइए. 2 मिनट से कम में आपको सारा आंसर खेलना है. चूज द बेस्ट ऑप्शन एज आंसर. कभी कभी ऐसे होता है कि हमें सारे ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस ऐसे लगते हैं कि आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है. तो चूज द बेस्ट ऑप्शन एज आंसर. और यही पॉइंट नंबर 5 में इंटरलिंक्ड है कि जब एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको ठीक लगे, आप आंसर सही में नहीं निकाल पा रहे हैं, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस एंड देन चूज. हमें रॉन्ग आंसर को कट करना है एंड जो हमारे जो एक या दो ऑप्शंस बच जाएंगे उसमें से जो बेस्ट चूज करना है, राइट. हमें बेस्ट चूज करना है. एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर. हमें इसके बाद जानना है सर क्या गेस वर्क चलता है. कैन वी डू द गेस वर्क इन एग्जाम्स लाइक CS Executive New Syllabus where you have negative marking, +1 for right answer and 0.25 for negative marking for every wrong answer. तो can you afford to do the guesswork? क्या हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आंसर कर सकते हैं?
चॉइस इज योर्स। मेरी सलाह मानोगे तो डोंट डू द गेस वर्क। गेस वर्क तभी करना है एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जब लास्ट का हाफ एन आवर रह जाए। यू हैव टू इवेल्युएट कि आपके कितने आंसर्स आपके हो गए हैं। इफ योर 70 to 80% आंसर्स आर ओके, यू हैव अटेम्प्टेड वेल। तो गेस वर्क आप तभी कीजिए जब आपको लग रहा है कि यस देयर इज अ 50% और मोर चांस, देयर कैन बी अ 50% और मोर चांस कि मेरा को ये आंसर लग रहा है। अगर एकदम आपको 50% या ज्यादा आपको उसको दिख रहा है कि यस दिस कैन बी द आंसर, तो गेस वर्क कीजिए। अदरवाइज डोंट ब्लाइंडली डू द गेस वर्क। कई लोग गेस करते हैं ए बी सी डी, तो ए ब्लाइंडली गेस नहीं करना है। दिमाग लगा के कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट याद आ जाए, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हो जाए, कहीं ना कहीं आपको लगता है 50% से ज्यादा लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए। नहीं तो इट्स बेटर कि आप 10 या 20 क्वेश्चंस छोड़ के आए, बिकॉज आपका एक एक मार्क भी बहुत मैटर करता है। आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल, क्योंकि हमारा ये जो नया सिलेबस के जो न्यू सिलेबस के जो एमसीक्यूज पेपर हैं, थोड़े से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। I'll be trying कि I'll be trying to come up with some important chapters MCQs of corporate and management accounting and financial management, क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। कौन से चैप्टर्स के आप चाहते हैं नीचे कमेंट में बताइए, बिकॉज हम सारे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बेसिक टिप्स मैंने आपको बताई, इसको ध्यान रखिए, बिकॉज हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय, जय हिंद।